So, Jai Hind everyone, this is Prem, and this is our channel, the Prem YouTube channel. So, welcome to this channel and talking about me. If you are new to here, so I have given multiple SSB attempts and I have some experience of different defense examination, and I'm also appearing for Reliance GCS 2026 for the first time. I have no prior experiences, but whatever I have seen in the YouTube, I'm explaining you throughout the procedure. And if you have any insights or any previous experience, do tell me in the comment section. If you have not subscribed it yet, do subscribe this channel because I will be updating you in further videos or whatever the notification it will came to me. I will definitely guide you throughout my experiences of SSB preparation and all the previous experiences which I have. Okay? So this is about my brief introduction, and if you have not yet subscribed, do subscribe it. I have also made a separate channel or a separate group for the preparation of mat examination, and here is the link of all those um, groups. You can join it. The Reliance GCS, this is the first group in the top, and these are some Instagram accounts. If you want to talk, if you want to discuss anything, you can message me personally. And this is another Telegram group which is of Dear Comrades name. I'm also running another group, so it is for different purpose. So if you want to join, you can join that also. Yeah, you can check it out. I have made separate videos related to some SSB process also, and some educational purpose videos, so you can check it out, right? So let's quickly move through our main purpose, right? So this is the email which I have received, and I am sure if you are here, you must have received this mail. Okay? So we have examination on 9th of May. It is decided, and I'm sure कि you have received this email, and the timing is also mentioned. You have to read it briefly. ठीक है? You just remember all the essential points of this email, that the duration of the test is 60 minutes, right? You can see the duration of the test is 60 minutes, which is mentioned here already. And this you can see the timing also is given, right? And MAT is full form of mental aptitude test. So I will be discussing what the subject, what you can expect, how much questions and from which sections the questions will be. Everything I will be discussing. I have seen some YouTube videos and some other websites, and through which I get these information, I will be sharing to you, and I will be talking to you in this English and Hindi mix of the language. Okay? So if it is okay, do let me know in the comment section, and do tell me what is your reviews on it, and what further videos you want from me. ठीक है? तो लेट्स क्विकली स्क्रॉल इट डाउन, एंड इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंश्योर यू टेक द टेस्ट फ्रॉम अ क्वाइट एंड डिस्टर्बेंस फ्री इन्वायरमेंट. तो ये इंश्योर करना आप, एंड बी सीटेड एंड रेडी एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है? इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल वाईफाई कनेक्शन, अवॉइड एनी टेक्निकल ग्लिचेस, and you should have a laptop or desktop. If you don't have, you can borrow it from your friends or family anywhere. Just try to arrange some laptop and then try to give this examination, and make sure that the desktop and laptop have a camera. Okay? And you should have a photo identity proof, like you can take your Aadhaar card. That will be sufficient for the verification purpose. And keep your reference ID ready. Like, reference ID is a 4 digit, which I have also explained in the previous videos when I was explaining you the form filling procedure. The last reference ID will generated at the end. तो उस reference ID को भी आप note down करके रखना. ठीक है? सो दैट इज़ ऑल. और अगर किसी को रेफरेंस आईडीज रिसीव नहीं हुआ है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस लॉगिन पोर्टल, जहाँ पे जीसीएस का जो वो था ऑफिशियल वेबसाइट. यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन द गूगल
दैट रिलायंस GCS, वो स्पेसिफिक वेबसाइट आ जाएगी, उसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है एंड देन यू विल गेट इट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड की तरफ। सो दिस इज़ द स्लाइड from which I will be explaining you the whole procedure. ठीक है, as you know, Reliance GCS Recruitment 2026, the ultimate tacticals blueprint, and this is the tagline. You can watch, see, right? So let's move further, and so the second slide is for the securing India's economic wealth. इसमें आपको क्या पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो रिलायंस GCS में आपको मिलने वाली हैं। बेसिकली आपका पैकेज और सैलरी कह सकते हो, और ट्रेनिंग कैसे होगी, देन इनका मिशन क्या है। बेसिकली इनको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये दिस इज़ दे आर रिक्रूटिंग बेसिकली फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पस, जिसमें उनको अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ सकते हो, द मिशन इज सेफ गार्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज मैसिव ऑपरेशंस स्पैनिंग हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, रिटेल्स एंड टेलीकॉम, एंड द मोटो इज़ ग्रोथ इज़ लाइफ। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है, एलाइट वर्ल्ड क्लास कंडीशनिंग रिलायंस सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी। इनका एक एकेडमी है RSRM में। ठीक है, रिलायंस सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग, जो भी सिलेक्टेड होंगे उन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होगी, एंड आपको जो पैकेज मिल रहा है वो इनिशियली आई बिलीव 5.75 LPA है, एंड इसमें ग्रोथ है 7 LPA तक का, उसके बाद और भी हो सकता है। देन एलाइट प्रोटेक्शन ग्रुप करके है, उसकी 7 to 9 LPA एंड स्केलिंग अप टू 12 LPA। ठीक है, आई बिलीव आपको एक ब्रीफ आइडिया हो चुका होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यू कैन चेक इट आउट कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। आपने अगर अभी भी आपकी ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो यू कैन जस्ट टेक दिस एग्ज़ाम एज अ लाइक यू कैन टेक इट एज एग्जाम्पल और टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है, बट आप दो एटलीस्ट प्रोसीजर, क्योंकि अच्छा है। दैट इज़ द प्राइमरी मोटो, प्रोसीजर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो एज लिमिट इज़ 21 to 27 एंड एज ऑफ 31 मार्च 2026। उसके बाद रिक्वायरमेंट है फुल टाइम ग्रेजुएशन की, कोई भी स्ट्रीम हो, कुछ भी हो, बट आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट, मिनिमम 50%। ठीक है, एंड आई बिलीव इसमें अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि 50% एग्रीगेट मांगा हुआ है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद यही है। एंड मेल की हाइट की एलिजिबिलिटी है 167.6 सेंटीमीटर विच इज़ 5 feet 6 inch, एंड फीमेल इज़ 157.5 सेंटीमीटर विच इज़ 5 feet 2 inch। ठीक है, तो बेसिक क्राइटेरिया यू हैव अंडरस्टैंड। और NCCC सर्टिफिकेट जिनके पास है, BSc आई बिलीव, BSc सर्टिफिकेट वालों को कुछ बोनस या प्रेफरेंस मिल जाएगी इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, बट मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास NCC होना ही चाहिए। इवन आई डू नॉट हैव एनी NCC सर्टिफिकेट, तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स। उसके बाद 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स और हिली एरियाज। ठीक है, तो दीज आर द प्राइमरी थिंग। उसके बाद इसकी स्टेज की जो 5 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सबसे पहले मैट विच इज़ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद PET विच इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन GD, देन साइकोमेट्रिक टेस्ट साइक, और पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, दीज आर द 5 प्रोसीजर विच विल बी कंडक्टिंग रिलायंस GCS एग्ज़ाम। ठीक है, जो भी इनका प्रोसीजर। उसके बाद देख सकते हो कि अपना 9 मई 2026 को ऑनलाइन मोड में 100% ऑनलाइन मोड है, एग्ज़ाम है, और रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की, मैंने पहले ही मेंशन कर रखा था। हाई स्पीड इंटरनेट और जो 30 to 35 मिनट कॉग्निटिव असेसमेंट, और आई थिंक 60 मिनट है, तो 60 मिनट का एग्जामिनेशन है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे होगा कि नहीं, तो वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएंगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, इवन इफ़ देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि वो मुझे जितना पता चला है सेक्शनल वाइज आती है, तो कुछ सेक्शन ही ओपन होंगे, सेक्शन वाइज आपको अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है,
बाकी चीज़ें हम आगे मेंशन देख रहे हैं। तो मैट एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने ब्रीफ़ली बता दिया है, जिसमें आपको लॉजिकल रीज़निंग मिलेगी, जो कि नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो एंड आपने पढ़ा भी होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्ज़ामिनेशन और डिफेंस एग्ज़ामिनेशन। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस नहीं होगी। तो मुझे जितना पता चला है बेसिक लेवल ही आता है, ठीक है? तो जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ सकते हो। अपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के जो नोट्स बना रखे हैं उसको आप गो थ्रू कर लो, दैट इज़ इनफ, ठीक है? ग्रामर एरर डिटेक्शन जो हमने अभी एफकैट और सीडीएस के लिए प्रिपेयर किया होगा, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है? उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको बेसिक परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट और कैलकुलेशंस एंड बोट स्पीड, ये स्पीड डिस्टेंस, फिर बोट वाली जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन कर ही दिया है, इतना ही आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एमएस ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और शॉर्ट कीज़ जो होती हैं वो सारी रिलेटेड हो सकती हैं। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ सिचुएशनल जजमेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? एंड आई बिलीव मुझे शायद किसी वीडियो में या मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में ही देखा था कि आपको शायद वहाँ पे इंट्रो भी लिखना पड़े, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है? आपको अगर इंट्रो लिखना पड़े तो आप जो इंट्रो वहाँ पे लिखे थे या उसका एक ब्रीफली नोट अपने माइंड में बना के रखना कि आपको इंट्रो लिखना है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉक्टर रहेगा। शायद फेस आपकी फेस तो आपका ऑन ही रहेगा एंड आपको बाकी चीज़ों की जो माइक्रोफोन है एंड सब कुछ इनेबल करना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट डू एनी अदर थिंग एलिसिट एक्टिविटीज़। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है? मतलब जो आप इंट्रो लिखोगे, सॉरी। सो द प्रो टिप्स इज अटेम्प्ट एवरीथिंग, मैक्सिमाइज वॉल्यूम, स्पीड इज़ योर अल्टीमेट वेपन। तो स्पीड ही करना है सारी चीज़ें। 10 मिनट का सेक्शनल टाइम रहेगा तो आपको उसी टाइम में ही ख़त्म करने का ट्राई करना है, ठीक है? तो लेट्स मूव फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इस थ्रू आउट होल प्रोसीजर में। तो मेल के लिए 800 रन 3.2 मिनट में, लॉन्ग जंप है 9 फीट का, हाई जंप है 3 फीट का, पुशअप है 10, देन सिटअप्स है 10 रेपिटेशन। उसके बाद फीमेल के लिए 800 4 मिनट, लॉन्ग जंप 8 फीट, हाई जंप 2.4 फीट, पुशअप्स 8, सिटअप्स 8, ठीक है? दीज आर द थिंग विच आई हैव गॉट। तो आप बेसिक आइडिया ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में 2 टॉपिक आते हैं और उसके बाद उस पे आपको डिस्कशन करना होगा, लॉजिकल पॉइंट देने होंगे, दैट्स ऑल, जो हम एसएसबी में प्रोसीजर में करते हैं। एंड आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ ग्रुप एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग दीज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली। इसमें कोई चार्ज लेने का कोई सीन है नहीं एंड आई डोंट थिंक कि आपको किसी का कोर्स ज्वाइन भी करना चाहिए इसके लिए एटलीस्ट, क्योंकि एक कम्युनिटी आप अगर बना भी लोगे बेसिक मिनिमम 10 कैंडिडेट्स का जो सीरियस हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन आराम से कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन का कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत है, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने की ज़रूरत है। ग्रुप ग्रुप डिस्कशन इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो वो इसीलिए मैंने वो ग्रुप जनरेट किया था कि मैं अगर फर्दर स्टेज तक पहुंचा तो मैं वो सारी चीज़ें कंडक्ट करवाऊँगा, अगर नहीं भी पहुंचा तो भी मैं कंडक्ट करवा दूँगा, ठीक है? दैट इज़ माई प्राइमरी पर्पस, टू हेल्प यू ऑल हु आर प्रीमरिंग और who don't have any idea about how to do these things, ठीक है? तो टेक्निकल एडवांटेज क्या है? 1 मिनट रूल, यू विल बी प्रोवाइडिंग अ पेन एंड नोट पैड, यूज़ फर्स्ट 60 सेकेंड ऑफ साइलेंस टू रैपिडली फ्रेम योर कीवर्ड बिफोर स्पीकिंग। तो आपको शायद मतलब ये प्रोसीजर है जिसमें आपको पेन एंड पेपर रहेगा, अपने पॉइंट नोट आउट कर सकते हो। ये वैसे एसएसबी में नहीं होती ये चीज़ें, बट यहाँ पे आपको दे रहे हैं तो आपकी हेल्प के लिए होगा। तो आप अपने नोट, जो भी आपका पॉइंट है वो एक सीक्वेंस में फ्रेम कर सकते हो, 10 या 5 पॉइंट जो आपको लिखना है, जिस पर आप स्पीक करने वाले हो, बोलने वाले हो, तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपको 10 से 15 मिनट इंटेंसिव राउंड, 2 डिस्टिंक्ट टॉपिक मिलेंगे, उस पर आपको डिस्कशन करना होगा। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड है, उसमें से कुछ लोग बचेंगे, ठीक है? आई बिलीव जितना मैंने सुना है यूट्यूब पे, कोई लास्ट टाइम हुआ था 150 के करीब लोग गए थे एंड 70 to 75 लोग बचे हुए थे आफ्टर ग्रुप डिस्कशन। तो एलिमिनेशन है एवरी स्टेज, तो आप एलिमिनेट होते हुए जाओगे, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अवेयरनेस भी है लोगों को, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग और आएंगे, ठीक है? लॉजिकल स्ट्रक्चर, न्यूरलिटी एंड टीम प्ले, न्यूट्रलिटी,
एंड टीम प्ले, देन फिजिकल अपीयरेंस एंड पॉस्चर ध्यान रखना, देन कम्युनिकेशन क्लैरिटी, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना, 4 डायमेंशन है ये। देन साइको टेस्ट क्या होता है, साइक टेस्ट बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें टैट की, वैट की, एसआरटी, टैट मतलब थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट एंड वैट मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन विच इज़ एसडीटी। ये एसएसबी के प्रोसीजर में होता है, तो जो एसएसबी वाले हैं उनसे आप ले सकते हो। आई हैव ऑल्सो बीन कॉन्फ्रेंस्ड आउट रिसेंटली, आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस्ड आउट फ्रॉम 4 एफएसबी वाराणसी, तो I can give you a brief introduction or brief theme how these thing will be performing, ठीक है। तो टैट में क्या होता है, 7 पिक्चर आएंगी हमारे यहाँ पे एसएसबी में, टोटल 12 पिक्चर आती हैं। 11 में आपको पिक्चर दी होगी, 1 ब्लैंक स्टोरी आती है। यहाँ पे 7 पिक्चर है, उसका हाफ मान लो, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, 7 पिक्चर स्टोरीज आपको फ्रेम करनी होंगी, देन एक ब्लैंक स्टोरी आएगी जो आपको घर से प्रिपेयर करनी होंगी, ठीक है। फिर 20 रैपिड वर्ड रहेंगे, जिसमें आपको 15 सेकेंड में, इन एसएसबी 15 सेकेंड का गैप रहता है हर एक वर्ड में। वहाँ पे 60 वर्ड आते हैं, आपको हर एक वर्ड का एक सेंटेंस लिखना होता है, जो भी आपको, जैसे राइट नाउ ब्लैक, मैं भी वर्ड शर्ट वियर कर रहा हूँ, फिर आपके सामने ब्लू आ गया, माइंड आ गया, जैसे यहाँ पे माइंड गेम लिखा हुआ है, माइंड आ गया, देन ऐसे ही वर्ड आएंगे। मान लो टेस्ट आ गया, रिएक्शन आ गया, इसमें मुझे बहुत सारे वर्ड मिल रहे हैं, सेल्फ आ गया, तो यू हैव टू प्रिपेयर्ड कंस्ट्रक्टिव और गुड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे लेज़ी आ गया, तो हम लोगों में जैसे लव आ गया, ठीक है, सेक्रीफाइसेस आ गया, तो ऐसा कुछ, जैसे लव आ गया तो यू कैन राइट की, मतलब मदर्स लव इज़ इटर्नल, और यू कैन राइट ऑल्सो लेजीनेस के लिए, लेज़ी के लिए कि रेगुलर एक्सरसाइज एलिमिनेट और मिटिगेट लेजीनेस, तो ऐसा कुछ करके आपको लिखना होगा, ठीक है। आई बिलीव आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, इसमें आई बिलीव 10 आएगा या 20 आएगा, आई डोंट नो, कि 10 सिनेरियो, ऐसा मुझे पता चला था यूट्यूब पे, तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो इसमें आपको 10 सिचुएशन आएंगी। मान लो आप एसएसबी, मान लो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और उस एग्ज़ाम के बीच में ही आपको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ा, हाउ यू एक्ट टू दैट सिचुएशन। मान लो आप अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हो, 10 गनमैन या 10 आदमी हैं जिनके हाथ में डंडा है, वो लेकर आ रहे हैं। नाउ इफ व्हाट यू डू, मतलब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इग्नोर करो और सिंपल उसको छोड़ दो, क्या ही करना है, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे कंडक्ट करेंगे, इफ़ यू विल बी कनेक्टेड विद मी। इफ़ यू नॉट, यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन दिस, तो वी कैन गो हैंड इन हैंड, और कलेक्टिवली वी कैन प्रैक्टिस इट ऑन, ठीक है। देन सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पे देने हैं, वहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होता है, what your parents think about you, what your friends, what your teachers, what do you think about you, and what you want to achieve in your life in the SSB। वहाँ पे 5 चीज़ें होती हैं। तो ये सारा सीन है प्रोसेस का। टैट क्या होता है, टैट में एक स्पेसिफिक सिनेरियो रहेगा पिक्चर का, उसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है इन द पास्ट टेंस, और उसमें एक करेक्टर, जैसे स्टोरी का क्या फॉर्मेट है, एक करेक्टर, एक हीरो होता है, एक हीरो को कुछ एक्शन करवाने होते हैं, उसका कंक्लूजन लिखना होता है, उसका कुछ आउटकम्स आना चाहिए, बस यही होता है टैट, ठीक है। आई बिलीव आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन सारी चीज़ों का हो चुका होगा। तो लेट्स मूव फर्दर, द स्टेज 5, द फाइनल थिंग विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू। इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होगा, जिसमें आप PIQ फॉर्म, एक PIQ फॉर्म होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर। उसके बाद उसमें आप अपनी डिटेल्स लिखते हो, आपकी हॉबीज़, क्या क्या आपने कर रखा है, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव कर रखी हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कंडक्ट करी हुई हैं लाइफ में या कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें आप पर क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, परखा जाएगा बेसिकली, कि आप उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो कि नहीं, ठीक है। दैट इज़ ऑल।
तो you can see you are facing a panel of high experienced ex military and corporate leaders, ठीक है। PIQ फॉर्म के हिसाब से या आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड सॉरी पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। देन विनिंग स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, इम्पेकेबल अपीयरेंस, ड्रेस लाइक एन ऑफिसर बिफोर यू बिकम वन, ठीक है। एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी, डू नॉट आर्ग्यू, आंसर कामली इफ पुश्ड ऑन, व्हाई नॉट द आर्म, डिलीवर अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस। अगर आर्म फोर्सेस के लिए पूछा जाए क्यों आर्मी नहीं ज्वाइन करनी है तुमको, तो उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच में बोल सकते हो कैन कि आई एम फाइंडिंग एन अल्टरनेट ऑप्शन, माई प्राइमरी पर्पज इज आर्म forces, defense forces, but I am finding an alternate options also because there is less selection ratio, you know it very well, and be practical to you, answer with the best of your knowledge, और बस इतना ही है, ट्रू रहो अपने आप से बस, और कुछ नहीं। कॉर्पोरेट मिलिट्री डिसिप्लिन क्या है, सो रिस्पेक्ट, स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू चेन ऑफ कमांड, ठीक है, एंड अनब्रेकेबल विलिंग, क्या लिखा है पढ़ लेना, ठीक है, अनब्रेकेबल विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, बस। देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम सच मोर कंटेंट, और कुछ भी हो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इट डाउन, आई विल प्रोवाइड यू हेल्प वट एवर आई कैन, और जो भी मुझे इंफॉर्मेशन होती है आई विल गिव यू एज सुन एज पॉसिबल। So that's all. Do like this video if it help you to subscribe, and I have made a Telegram group. I will also show you. So this is the group which I have made, and 44 member is already there. So you can join it through that link which I have provided to you in the bio of YouTube channel. So that's all which I wanted to discuss. I have also covered these videos. So if you want some other knowledge, you can watch this video also. And I have also give you and some other video and further this थ्रू आउट दिस प्रोसीजर, जैसे भी प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो इन सारी चीज़ों का मैं वीडियो ले आऊँगा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जिससे आपको हेल्प हो जाए। और अभी आपको अगर 9 मई को एग्ज़ाम है, तो आपको अगर बेसिक भी थोड़ा आपका हिला हुआ है, तो यू कैन जस्ट सर्च दोज टॉपिक्स विच आई हैव मेंशन्ड इन दिस पीपीटी, और वो टॉपिक आप यूट्यूब पे डायरेक्टली आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे, आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, उसको आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, दैट्स ऑल, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, नाउ लेट्स क्लोज दिस, एंड एज आई हैव सेड कि यहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी, इसी चैनल पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी लिंक पड़ी हुई हैं। इफ़ यू वांटेड टू डिस्कस विथ मी, यू कैन डायरेक्टली कमेंट me on Instagram, or directly message to me on this Telegram as well, right? Baki, there are lots of videos which I have made. If you find it helpful, you can check it out. SSB से related मैंने कुछ videos बना रखी हैं, अगर आपको help हो तो do let me know. That's all. Do subscribe, like and follow for more. Jai Hind. Let's ease this examination together, and let's meet in the interview panel. All the best.